فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم وصدق ما بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے سمندر میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دافع البلا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اس ٹھنڈک کے موسم میں آل رسول کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور اہل بیت اطہار کے در پاک کی بھیک عطا فرمائے، آمین، اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہونے والی شادی میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے، آمین۔ حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ شورائے اسلام کا نورانی قافلہ ممبر پاک پر تشریف فرما ہوا اور سب کو آپ نے کے بعد دیگرے سماعت فرما لیا۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا، یہ کھڑے ہو کر جو بول رہا ہوں اسی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ زیادہ دیر بولنے والے نہیں ہیں، زیادہ وقت میں آپ کا نہ لوں گا۔ حقیقت میں آج میری تقریر نہیں، یہ تو میں آل رسول کی موجودگی میں خراج عقیدت پیش کرنے آ گیا سرکاروں کی بارگاہ میں۔ جانتے ہیں آپ، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، اس ٹوپی میں مجھے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا، پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے۔ یہ موسم زبردست پورا، لیکن آپ سب ہم لوگ جو آئے ہیں صرف اس لالچ میں آئے کہ آج اگر ہم لوگ اس ٹھنڈک کے موسم میں آل رسول کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی قسم جب حشر کا میدان بپا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو یہی ہے اگر آقا کی بارگاہ میں صرف اتنا کہہ دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو میں پہچانتا ہوں، خدا کی قسم اسی کہنے پر ہم سب کی شفاعت ہو جائے، سبحان اللہ، بخشش ہو جائے گی۔ اس نیت سے میں جانتا ہوں یہ برگزبہ ہے، یہاں تو میرا کچھ بڑا گزرا آپ اس درمیان واقعی 2 دن کے بعد آئے ہیں، محبتیں نہیں تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے درمیان رہیں گے۔ حضور کی آمد سب فرقے ہیں حضرت کی محبت میں۔ ہمارے جنید بھائی کافی دن پہلے مدعو کیا، اشتہار نکالا حضور کی سرپرستی میں جلسہ، حقیقت میں ان کا نصیبہ ہے۔ شادی بلا شبہ خوشی کا موقع، شادی مطلب ہی خوشی، لیکن ایسی خوشیاں تو سب کو نصیب ہوتی ہیں، کم وہ خوش نصیب ہوتے، کم لوگ ہیں خوش نصیب ایسے کہ شادی تو خوشی ہے ہی، ایسے موقع پر نبی کا شہزادہ آ جائے تو خوشیوں میں اضافہ ہی اضافہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ آج آل رسول ان کے اہم مہمان بنے
सुभान अल्लाह, ये नसीब की बात है, नसीब की बात है। और मैं आपको बताऊं, वहाबिया दयावना कहते हैं ये सुन्नियों को पता नहीं क्या हो गया, इनके यहाँ शादी हो, बियाह हो, खतना हो, अकीका हो, हमेशा ये मिलाद शरीफ करते हैं। पूछे कोई सनाउल्लाह सिद्दीकी साहब, आपके बेटे की शादी मिलाद क्यों किया? जुनैद साहब, आपकी शादी है, आपने मिलाद क्यों किया? सुन्नियों को हो क्या गया, हमेशा ये मिलाद शरीफ करते, हमेशा मिलाद शरीफ करते। तो सुन लो, कह दो नादान, तुझे पता नहीं शादी के मौके पर नबी को याद करना ये नाजायज नहीं, ये बिदअत नहीं, ये आज का तरीका नहीं, ये तो सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा का तरीका है। वो भी शादियों में प्यारे मुस्तफा को याद किया। और सुनो कैसे याद करते थे, सिर्फ तरीका बदल गया, अंदाज बदल गया, काम वही है जो सहाबा करते थे, तरीका सिर्फ बदल गया जो मिलाद शरीफ करने का। सुनिए कैसे नबी को याद करते। एक रिवायत सुनाऊंगा, बात मुकम्मल करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। सहाबी आशिक़े रसूल, सहाबा से बढ़कर मकाम किसका? अल्लाह। कुर्बान जाओ सहाबे किराम पर, नबी पर दिलो जान से कुर्बान होते थे। सुभान। अभी महीना गुजरा है जुमादल आखिरा का महीना, जिसकी 22 तारीख उसको निस्बत है किस साल से जानते हैं? खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की साथ से। सुभान। जब जानिसारी की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को याद किया जाता। सुभान। आज तक कोई ऐसा तारीख में नहीं मिला कि जिसकी ये तारीख हो। हाँ, इश्क में कुर्बान होने वाले तो सब कुर्बान करते ही हैं, लेकिन कुर्बान जाओ सरकार सिद्दीक़ अकबर की जात पर, हजरत सैयदना फारूक आज़म है, ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अपने घर का आधा सामान लाए, कुर्बान किया। या रसूल अल्लाह, ये मेरे घर का आधा सामान। आका फरमाते घर वालों के लिए क्या छोड़ा, बाल बच्चों के लिए, अहल के लिए क्या छोड़ा? या रसूल अल्लाह, इसी के मिस्र छोड़ा। आका ने बरकत की दुआ की। सोच रहे थे सेहत आज फारूक आज़म, आप सोच रहे थे आज मैं सबसे आगे बढ़ जाऊंगा, नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। सोच ही रहे थे, नजर पड़ गई सिद्दीक़ अकबर पर, खलीफे अव्वल पर। सिद्दीक़ अकबर आ रहे, कत्ल लादे ला रहे, अल्लाह के रसूल के कदमों में कुर्बान किया। आका फरमाते हैं सिद्दीक़ क्या शान है, क्या लाए हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक़ के घर का पूरा सामान है। आका फरमाते मेरे सिद्दीक़ अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह, सामान सब ले आया, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल का इश्क हो। सुभान अल्लाह। ये आशिक थे जिन्होंने अपना पूरा घराना, घर का पूरा सामान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो के सहाबा ऐसे ही होते थे, वक्त नहीं वरना सुनाता उसी मौके पर जब ये चंदा जमा हो रहा था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर घर का पूरा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार को देखकर फारूक आज़म कदमों पे गिर पड़ा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं सोचता था सब कत्ल कर ले जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, मगर सिद्दीक़ से बड़ा कार खैर वाला कोई नहीं है। वो सहाबा ऐसे आशिक थे अल्लाह अल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ देर ना देखते तो सुकून नहीं मिलता था, तलाश में निकल पड़ते थे। मगर कैसे तलाश करते थे? मेरे मुस्तफा जाने रहमत जिधर से गुजरते उधर से खुशबू ही खुशबू होती, सहाबा खुशबू से पहचान जाते, मेरे आका का गुजर इधर हुआ। कहने का मकसद आशिक़ रसूल देखना हो तो सहाबा की मुक़द्दस जमात को देखो। सुभान। और मौलाए कायनात सरकार का भी नारा लग रहा है। ये महीना रजब रजब का है, इसी महीने में सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ है। सुभान। इसी महीने में सरकार मसूदे गाजी का भी उर्स है, और इसी महीने में मौलाए कायनात की विलादत भी है। सुभान। वाकई अच्छा किया, लगा बड़ी खुशी की बात।
उधर से सरकार सिद्दीक़ अकबर का महीना गुजरा, इधर मौलाए कायनात का महीना आ गया। सुभान, हम सुन्नियों का नसीबा है, कोई महीना कोई तारीख खाली नहीं है कि जिसको किसी न किसी वली अल्लाह वाले से निस्बत हो। सुभान, निस्बत। अब तवज्जो करें, तो अर्ज कर रहा था एक सहाबी रसूल नबी के आशिक, उनके बच्चों की शादी, सुनो कैसे शादी पर नबी को याद किया। उनके बच्चों की शादी, सोचा बड़े बड़े मालदार अहले सरबत दौलत वाले रूसा ये बाहर से खुशबूदार चीजें मंगाते दूसरे मोबाइल से और अपनी बेटी को दुल्हन बनाते तो उसी से खुशबूदार करते, मुअत्तर करते, दूल्हा बनाते तो खुशबूदार चीजों का इस्तेमाल करते जिससे दूल्हा और दुल्हन महक जाते। सहाबी ने सोचा हम अपने बच्चों को वहां से खुशबू लाकर मुअत्तर तो नहीं कर सकते, आज सबसे अनोखा तरीका अपनाऊंगा। जान को क्या किया, किसी मुल्क से खुशबूदार चीज ना मंगाए, इत्र ना मंगाए, खुशबू ना मंगाए। सहाबी आशिक थे, एक कासा लिया, एक प्याला लिया, कहीं और ना गए बल्कि रसूल मुख्तार की बारगाह में हाजिर हो गए। कदमे रसूल में अपना सर रख दिया, या रसूल अल्लाह, अहले सरबत खुशबूदार चीजें मंगाकर अपनी औलाद को मुअत्तर करते हैं, मेरे बच्चों की शादी है, ऐ आका मैं बाहर से नहीं मंगाऊंगा, मैं आपकी बारगाह में भिखारी बनकर आया हूँ, एक प्याला लाया हूँ, आप इसी में पसीना मुबारक अता फरमा दे, उसी से मैं अपने बेटे और बेटी को सजाऊंगा, इसी से दूल्हा दुल्हन सजाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने इनकार का हज़रत अनस बिन मालिक के रावी है, वो फरमाते आका ने इनकार न किया, रसूल पाक के यहाँ ला कहा इनकार ही नहीं। मेरे नबी की शान ये है, मांगने वाला मांगता मांगते मांगते थक जाता, मेरे नबी उससे ज्यादा अता फरमा देते। सुभान अल मुख्तसर सहाबी रसूल आए, कासा पेश किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीना मुबारक अता फरमाया, सहाबी लेकर आए, अपने बच्चों को लगाया। शारहीन हदीस बयान करते हैं कि उस पसीने मुबारक के लगाने से उनसे जो बेटे पैदा हुए, औलादे पैदा हुई, बेटियां पैदा हुई, सबके बदन से खुशबू आ रही थी। सुभान, अब अकीदा मिल गया, अगर सहाबी रसूल पसीना मुबारक लाकर अपने बेटा बेटी को सजा देते हैं, ये जायज है, तो अल्लाह की कसम जुनैद के घर वालों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता कि इन लोगों ने सोचा हमारी पहुंच वहां तक नहीं है कि पसीना मुबारक लाओ, तो लाओ नबी के बेटे को बुला लो, उन्हीं से मेरा बेटा रह जाएगा, मेरे घर की दुल्हन नसीब है, ये जुनैद भाई का नसीब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक मौके पर, खुशी के मौके पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रसूल मुख्तार का शहजादा जन्म। और ये भी देखो मसलके आला हजरत का सदका, सुभान मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं और ये मसलके आला हजरत की देन है कि आज मिलाद शरीफ कर रहे हैं। सुभान और लोगों के यहाँ तो नाजायज है, बिदात है, शिरक है, मगर मेरे रज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह वो मसलक दिया कि यहाँ भी नबी का जिक्र कर रहे, सलाम पढ़ रहे, कब्र में भी पढ़ेंगे, हाशिर में इंशाअल्लाह जरूर, इंशाअल्लाह। वक्त नहीं कि उसकी वजाहत करो, बस इतना सुने। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल तशरीफ फरमा, इन लोगों की मोहब्बत चाहत नसीब था, वरना अभी कल हजरत की आमद हुई है मुंबई से, हम तो साथ ही थे खिदमत में, कल अभी आमद हुई है, इनका नसीब था, हुजूर की आमद हो गई, पहुंच गए। वो दुल्हन भी खुशकिस्मत है जिसको दुआ देने आला हजरत के पीर खाने का शहजादा है। ये मसलके आला हजरत का सदका, मेरे आला हजरत ने कहा तुम मसलके आला हजरत का नारा लगाते, घबराओ नहीं, लगाते रहो नारा, करते रहो मेरा। तुम्हारी आंखें अगर इस लायक नहीं है कि मदीने वाले सरकार का दीदार कर लो, तो लो मदीने वाले सरकार की औलाद का दीदार कर लो। सुभान अल्लाह। अरे आप इतना समझ लें, जब
जब एक आलिम के चेहरे को देखना इबादत, सुभान अल्लाह उलमा के चेहरे को देखना इबादत। आका फरमाते जिसने एक आलिम से मुसाफा किया गोया कि मुझसे मुसाफा किया। सुभान अल्लाह जिसने एक आलिम के पास अपना वक्त गुजारा बैठा वो मेरे पास बैठा। अब आप जरा सोचे, आलिम सैयद ना हो, किसी भी बिरादरी का हो, हकीकत में आलिम है, आलिम बामल वाकई शरई आलिम है, उसकी शान ये मुसाफा आलिम से कोई करे। और आलिम क्या होता है? प्यारे मुस्तफा से मुसाफा कर रहा। जब एक आलिम से मुसाफा करने वाला गोया नबियों के इमाम से मुसाफा कर रहा, तो जो हुसैन के बेटे से मुसाफा करेगा, नबी के शहजादे से मुसाफा करेगा, हकीकत में गौसे आजम से मुसाफा कर रहा, हुसैन आजम से मुसाफा कर रहा, हकीकत में नबियों के इमाम से अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमत को याद करो। ये खुशियाँ, ये नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, शुमार करना चाहो नहीं कर सकते हो। अल्लाह बेशुमार नेमतों से नवाज रहा, इंशाअल्लाह नवाजेगा। लेकिन सबसे बड़ी नेमत आज देख रहे हैं आले रसूल की शक्ल में। सुभान अल्लाह, आले रसूल तशरीफ आए, ये हम सबका नसीब है कि हुजूर की जियारत कर रहे हैं। अब मैं मजीद वक्त ना लूंगा, मैं तो जब चाहोगे आप तब आ जाऊंगा और तब बोल दूंगा तकरीर। आज हमारे दरमियान बाहर से आए हुए राजस्थान की धरती से तशरीफ आए, ख्वाजा के प्यार से राजस्थान से तशरीफ आए हजरत के चहीते खतीब दौरा आलिम ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शमसुद्दीन साहब किबला मिसबाही मद्दज़िलुल आली व नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के तो चहीते हैं ही, लेकिन हुजूर जमाल मिल्लत अल्लामा जमाल रज़ा साहब मद्दज़िलुल आली व नूरानी के खलीफा भी हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जब आते हैं तो आप लोग कितना प्यार देते, कितना एहतराम करते हो। हजरत के खलीफा है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं, मैं चाहता अपना वक्त पूरा हजरत को दे दो। और थोड़ी देर हजरत जो पसंद फरमाएंगे, नात पढ़े, चाहे तकरीर करें, चाहे दोनों करें, चाहे सलाम भी बाद में पढ़ा दे, सब इख्तियार है हजरत का। मुकम्मल वक्त हजरत के बारे में इंशाअल्लाह फिर कभी बोल दूंगा, लेकिन नहीं है। हालांकि आपकी तबीयत चाहती सुनने की, मेरी तबीयत चाहती सुनाने की, मगर मोहब्बत का तकाजा ये है अपने मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। हमारे नहीं, सबके मेहमान हैं। भाई को हमारे घर के अंदर सलामत रखे हैं। और जो शादी हो रही है उस शादी में मौला आले रसूल का सदका अता फरमाए। अकीदा है मेरा, ईमान है, इंशाअल्लाह हजरत के कदमे नात जब पढ़ ही गए हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। और हुजूर की शान ये घराना ऐसा घराना उस खानदान से जहाँ यके बाद दिगरे औलिया अल्लाह ही तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, यही तो घराना है जहाँ एक गुंबद के नीचे 7-7 कुतुब लेते हैं। सुभान कमाल है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में बहुत गुंबद है, गुंबद खजरा तो सबका सरदार है, बहुत गुंबद है, मगर तो गुंबद की शान अलग है। एक मारेरा के गुंबद की शान और एक मेरे बरेली आला हजरत के गुंबद की शान जानते क्या है? कहीं नहीं पाओ गुंबद नजर आता है। ये जरूर यकीन होता है कि अल्लाह को वली लेता है, लेकिन नहीं। बोले शेख बाबा क्या चले जाओ गुंबद के नीचे, बाबा जलाली शाह क्या चले जाओ गुंबद के नीचे। एक गुंबद में एक बुजुर्ग या 2 बुजुर्ग का चर्चा शरीफ में 2 बुजुर्ग लेते, कहीं 3 बुजुर्ग ऐसे हो। मगर कमाल है मारेरा शरीफ के गुंबद के नीचे, एक गुंबद के नीचे 7-7 कुतुब लेते हैं। और जब बरेली शरीफ आओ तो एक गुंबद के नीचे 2-2 मुजद्दिद लेते हैं। बाप भी मुजद्दिद है, बेटा भी मुजद्दिद है, 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत है, 15वीं सदी के मुजद्दिद मेरे मुफ्ती आजम। और ये वो शख्सियत कि जब 15वीं सदी का मुजद्दिद देखता था अल्लाह तो हुजूर के इस्तेमाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। ऐसे साथ हम सबके दरमियान फरमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमारे नबी के कदमों की बरकत से हम सबके हाजिरी कबूल फरमाए। और हजरत के सदक़े में मौला हमारे जुनैद भाई के इस दिवार की जिंदगी में खूब खैर
बरकत नाज़िल फरमाए, होने वाली शादी पाए तकमील तक पहुंचाए, बहुस्न व खूबी अल्लाह ताला इस शादी को पाए तकमील तक पहुंचाए। जो बच्ची आ रही है आले नबी के सदके में मौला उस बच्ची के अंदर खूबियां ही खूबियां पैदा फरमा दे, उसके कदमों में बरकत अता फरमा, हमारे बोलने में जो गलती हो अल्लाह उससे माफ फरमा। बिल्कुल जैसा भी बात हो जाए तो हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दो बंद शेर पढ़ेंगे, इनके बाद फिर हमारे नाज़िम साहब बहुत अच्छे लतीफ़, हकीकत ये है बहुत अच्छे लतीफ़ हैं, अक्सर जलसों में मुलाकात होती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्तों में बड़ी शोहरत हासिल की। ये सब बुजुर्गों का सदका आले रसूल की बारगाह के बड़े मुअद्दब है, उलमा की कदर करते हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब मैं चाहता हूँ ये दो बंद पढ़ दें, उसके बाद फिर हज़रत नकाबत फरमाए और फिर हज़रत का खिताब हो जाए। हमारे बोलने में जो गलती हो मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।